Hello, dear learners. Welcome to the English class. In this session, I am Kamaksha Mishra from SCERT, Uttarakhand, bringing you the session. Today, we'll discuss a very interesting story given in the English textbook for class 6th, Honeysuckle. Name of the story is A Different Kind of School by English writer E.V. Lucas. In this session, first of all, we'll read the text with correct pronunciation. We'll discuss some words with their meanings. We'll try to identify the pronouns that are there in the text. And finally, we'll sum up with a home assignment. Now, here's the chapter, A Different Kind of School by E.V. Lucas. I had heard a great deal about Miss Beam's school, but not till last week did the chance come to visit it. When I arrived there was no one in sight but a girl of about 12. Her eyes were covered with a bandage and she was being led carefully between the lower beds by a little boy who was about 4 years younger. She stopped and it looked like she asked him who had come. He seemed to be describing me to her. Then they passed on. Now look at the word and phrase and its meaning. Insight means to be seen and bandage means dressing. Now, what does the narrator say? Here, I refers to the narrator. यहाँ राइटर खुद अपनी कहानी सुना रहे हैं, तो वो इस स्टोरी को नरेट कर रहे हैं. वो मिस बीम के स्कूल के बारे में बताते हैं कि उन्होंने मिस बीम के स्पेशल स्कूल के विषय में बहुत कुछ सुना था, लेकिन पिछले हफ्ते ही उन्हें वहां जाने का चांस मिला. नैरेटर कहते हैं कि जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन केवल एक 12 साल की लड़की उन्हें दिखाई दी. उसकी आईज एक बैंडेज से कवर की हुई थी और एक छोटा बच्चा उसे बहुत ही ध्यान से धीरे धीरे लेकर जा रहा था, जो उससे करीब 4 साल छोटा था. वो रुकी और उसने उस लड़के से पूछा कि कौन आया है. वो लड़का उसे नैरेटर के बारे में बता रहा था और फिर वो वहां से आगे बढ़ गए. Miss Beam was all that I had expected. Middle-aged, full of authority, yet kindly and understanding. Her hair was beginning to turn grey and she had the kind of plump figure that is likely to be comforting to a homesick child. I asked her some questions about her teaching methods, which I had heard were simple. No more than is needed to help them to learn how to do things. Simple spelling, adding, subtracting, multiplying, and writing. The rest is done by reading to them and by interesting talks during which they have to sit still and keep their hands quiet. There are practically no other lessons. Now look at the difficult words that are used here. Kindly means friendly.
Plump means pleasantly fat. Homesick means unhappy because of being away from home. Practically means almost. Now, what happened when the author visited the school? He, for the first time, saw Miss Beam, who was the organizer of the school. Author को मिस बीम से मिलने का मौका मिला और उन्होंने मिस बीम को जैसा अपनी इमेजिनेशन में सोचा था वो वैसी ही निकली। वो एक मिडिल एज्ड फीमेल थी, बहुत अथॉरिटेटिव थी, क्योंकि वो उस पूरे स्कूल को गवर्न करती थी। वो बहुत काइंडली थी, दैट इज़ वो बहुत फ्रेंडली नेचर की थी और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग थी, बहुत समझदार थी। उनके बाल धीरे धीरे सफ़ेद होने को थे और साथ ही उनकी फिगर बिल्कुल प्लम्प फिगर थी, मतलब वो बहुत ही गोल मटोल सी महिला थी जो देखने में बहुत ही प्यारी लग रही थी। और नैरेटर का कहना है कि उनकी फिगर कुछ ऐसी थी जो एक होम सिक बच्चे को कंफर्ट दे सके। होम सिक, जब भी हम अपने घर से बाहर होते हैं तो हम होम सिक फील करते हैं बिकॉज वी मिस आवर होम एंड फैमिली। तो जो बच्चे उनके स्कूल में आते थे उनके लिए वो बहुत ही प्यार और दुलार का भाव रखती थी और उनकी फिगर भी उसी एक्सप्रेशन को दिखाती थी। नैरेटर ने उनसे उनके टीचिंग मेथड्स के विषय में कुछ क्वेश्चंस पूछे जो बहुत ही सिंपल आंसर्स के साथ समझाए गए। मिस बीम ने कहा कि उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है चीज़ों को सिखाने में। वो बच्चों को सिंपल स्पेलिंग सिखाती हैं, एडिशन सिखाती हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और राइटिंग सिखाती हैं। बाकी सारी चीज़ें उनको रीड आउट की जाती है, उनके साथ बहुत ही मज़ेदार टॉक्स की जाती हैं, बातचीत के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है। और जिस समय ये सारे प्रोसेसेस हो रहे होते हैं बच्चों को बिल्कुल सीधा बैठना होता है और अपने हाथों को बिल्कुल शांत मुद्रा में रखना होता है। इसके अलावा और कोई लेसन्स नहीं होते। The real aim of this school is not so much to teach thought as to teach thoughtfulness, kindness to others, and being responsible citizens. Look out of the window a minute, will you? I went to the window which overlooked a large garden and a playground at the back. What do you see? Miss Beam asked. I see some very beautiful grounds, I said, and a lot of jolly children. It pains me, though, to see that they are not all so healthy and active looking. When I came in, I saw a poor little girl being led about. She has some trouble with her eyes. Now I can see two more with the same difficulty. And there's a girl with a crutch watching the others at play. She seems to be a hopeless cripple. Now look at the words and their meanings. Responsible. Responsible means aware of their duties or zimmedar. Jolly. Jolly means happy. Then there's a phrase called at play. At play means playing at that time. Hopeless. Hopeless means with no hope. Cripple means a person who has lost his arm or leg.
नाउ व्हाट हैपेंस हियर? मिस बीम शेयर करती हैं कि इस स्कूल का एम केवल विचार उत्पन्न करना नहीं है, बल्कि बच्चों को विचारशील बनाना है, चिंतनशील बनाना है, जिससे वो दूसरों के प्रति दया दिखा सकें और जिम्मेदार नागरिक बन सकें। उन्होंने नैरेटर को विंडो से बाहर देखने के लिए कहा। जब नैरेटर ने विंडो के बाहर देखा तो उन्हें एक बहुत बड़ा सा गार्डन और एक प्लेग्राउंड दिखाई दिया। मिस बीम ने पूछा, आपने क्या देखा? नैरेटर ने जवाब दिया कि बाहर बहुत सुंदर ग्राउंड दिखाई दे रहा है और बहुत सारे बच्चे खुश होकर खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। नैरेटर ने आगे कहा कि मुझे इस बात से बहुत दुख हो रहा है कि वो सारे के सारे बच्चे हेल्दी और एक्टिव लुकिंग नहीं हैं। नैरेटर ने बताया कि जब वो अंदर आ रहा था तो उसने एक छोटी सी बच्ची को देखा जिसे एक दूसरा बच्चा पकड़ के ले जा रहा था। उसकी आईज में कुछ प्रॉब्लम थी और इसी तरीके के 2 और बच्चे वो देख सकता है। साथ ही एक गर्ल है जिसके पास एक क्रच है, उसने हाथ में क्रच लिया हुआ है। क्रच को बैसाखी कहते हैं। इट्स अ टाइप ऑफ स्टेक दैट हेल्प्स यू टू वॉक। और वो बच्ची बाकी बच्चों को खेलते हुए देख रही है। ऐसा लगता है कि वो एक क्रिपल है, उसके हाथ या उसके पैर में प्रॉब्लम है। स्पेशली उसने क्रच लिया हुआ है तो उसके लेग में कोई प्रॉब्लम है, वो ठीक से नहीं चल सकती, इसीलिए वो बाकी बच्चों को देख रही है। मिस बीम laughed. Oh no, she said. It's not really. She is not really lame. This is only her lame day. The others are not blind either. It is only their blind day. I must have looked very surprised, for she laughed again. This is a very important part of our system to make our children appreciate and understand misfortune. We make them share in misfortune too. Each term, every child has one blind day, one lame day, one deaf day, one injured day, and one dumb day. During the blind day, their eyes are bandaged, absolutely, and they are on their honor not to peep. The bandage is put on overnight, so they wake blind. This means that they need help with everything. Other children are given the duty of helping them and leading them about. They all learn so much this way, both the blind and the helpers. Now look at the word meanings as well as the meanings of phrases. Lame day, what does this mean? Lame day means day on which a child has to act as if he or she was lame. Then misfortune. Misfortune means bad luck. Their eyes are bandaged means they are blindfolded. Then are on their honor means they have promised. What they have promised? They have promised that they'll not cheat. So let's discuss what happens here. Now Miss Beam laughs at the author's reaction. मिस बीम हंसने लगती हैं और कहती हैं कि नहीं, वो बच्ची सच में अपने पैर से लाचार नहीं है, यानी वो चल नहीं सकती, ऐसा नहीं है, ये उसका लेम डे है। जो दूसरे बच्चे हैं
वो एक्चुअली ब्लाइंड नहीं है। ऐसा नहीं कि वो आंखों से देख नहीं सकते, ये उनका ब्लाइंड डे है। आज उन्हें ऐसा पोज करना है। ऑथर को बहुत ही सरप्राइजिंग लगा क्योंकि वो एक बार फिर से ये बताते बताते हंसने लगी। मिस बीम ने शेयर किया कि ये उनके सिस्टम का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वो अपने बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे बच्चों को मिस फॉर्च्यून या बैड लक को समझना चाहिए और उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। वो उन्हें मिस फॉर्च्यून शेयर करने के मौके देते हैं। इसलिए हर बच्चे का एक दिन ब्लाइंड डे होता है, एक दिन लेम डे होता है, एक दिन डेफ डे होता है जिस दिन उन्हें सुनना नहीं होता, एक दिन इंजर्ड डे होता है जिस दिन वो जख्मी होते हैं, एक दिन डम्ब डे होता है जिस दिन उन्हें बोलना नहीं होता, क्योंकि उन्हें ये सारी डिफॉर्मिटीज को खुद एक्सपीरियंस करना होता है कि अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए तो उसे कैसा अनुभव होगा। ब्लाइंड डे के दिन उनकी आईज पर बैंडेज बांध दिया जाता है और उनको खुद से ये प्रॉमिस करना होता है कि वो बिल्कुल भी अपनी आंख खोलकर देखेंगे नहीं। ये बैंडेज रात भर बांधा रहना होता है और उन्हें सुबह ऐसा उठना होता है जैसे वो देख ना सकते हों। इसका मतलब यह है कि उन्हें अपने हर काम के लिए किसी की हेल्प की जरूरत होती है। बाकी बच्चे उनको हेल्प करते हैं, ये उनकी ड्यूटी होती है कि वो अपने इन क्लासमेट्स की हेल्प करें और उन्हें जहाँ पर भी जाना है उन्हें पहुँचाएं और उनका मार्गदर्शन करें। इस तरह ये दोनों ही तरीके बच्चे सीखते हैं जब एक बच्चा ब्लाइंड बना है और दूसरे बच्चे उसके हेल्पर्स बने हैं। There is no misery about it, Miss Beam continued. Everyone is kind and it is really something of a game. Before the day is over, though, even the most thoughtless child realizes what misfortune is. The blind day is, of course, really the worst, but some of the children tell me that the dumb day is the most difficult. We cannot bandage the children's mouth, so they really have to exercise their willpower. Come into the garden and see for yourself how the children feel about. Miss Beam led me to one of the bandaged girls. Here's a gentleman come to talk to you, said Miss Beam, and left us. Now look at the difficult words. Misery means difficulty. Thoughtless means careless. Come to talk means who has come to talk to the other person. Now, Miss Beam आगे कंटिन्यू करते हुए बताती हैं कि इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। हर बच्चा बहुत ही काइंड होता है, बहुत दयालु होता है और एक तरह से यह एक गेम जैसा ही है। इससे पहले कि जब दिन ओवर होता है, हर बच्चा ये बात रियलाइज करता है कि मिस फॉर्च्यून या बैड लक क्या होता है। कुछ बच्चे कहते हैं कि ब्लाइंड डे बहुत ही वर्स्ट है, बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस है, लेकिन कुछ बच्चे ये भी बताते हैं कि डम्ब डे बहुत डिफिकल्ट है, यानी जिस दिन बच्चों को बोलना नहीं होता, उन्हें मूक बने रहना होता है, क्योंकि बच्चों के मुंह में बैंडेज नहीं बांधा जा सकता और यह उनकी विल पावर पे डिपेंड करता है। मीन्स यह उनकी संकल्प शक्ति पर डिपेंड करता है कि वो कैसे बिना बोले रह सकते हैं। इसके बाद मिस बीन नैरेटर को गार्डन में ले जाती हैं और उन्हें कहती हैं कि वो खुद देखें कि बच्चे ऐसा करके कैसा फील करते हैं। मिस बीम नैरेटर को कुछ गर्ल्स के पास ले जाती हैं जिनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी। वो उन गर्ल्स से कहती हैं कि यहाँ एक सज्जन आए हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं और उन्हें छोड़कर वो
चली जाती हैं. Don't you ever peep? I asked the girl. Oh no, she exclaimed. That would be cheating. But I had no idea it was so awful to be blind. You can't see a thing. You feel you're going to be hit by something every moment. It's such a relief just to sit down. Are your helpers kind to you? I asked. Fairly, but they are not as careful as I shall be when it is my turn. Those that have been blind already are the best helpers. It's perfectly ghastly to see. I wish you would try. Shall I lead you anywhere? I asked. Now, look at the difficult words that are used out here. Awful, awful means bad, and ghastly means frightful. Now, that as it has been told earlier that we are supposed to discuss some pronouns also here in the slide. So let's have quick introduction and then you'll search for the pronouns in the rest of the chapter. Now here I is a pronoun. Similarly, she is a pronoun. Then it is also a pronoun. Then you, and after that they. All these are pronouns. And what pronouns are? Pronouns are actually words that are used in place of a noun, so that we need not have to repeat the noun again and again. We replace it with a word, and that is called a pronoun, and this adds to the beauty of the language. So your work will be to search these pronouns in the text that we have already read. Now let's again be back with the meaning of the text. So what happened? As the narrator was talking to that little girl who has bandage in her eyes because it is a blind day. उस दिन उस बच्ची के लिए ब्लाइंड डे है और मिस भीम ने नैरेटर को उसके साथ छोड़ा है. नैरेटर उससे कुछ क्वेश्चन पूछता है. वो उससे पूछता है कि क्या तुम कभी भी आँख खोलकर देखती नहीं हो? तो वो बच्ची जवाब देती है, नहीं, ऐसा करना तो चीटिंग होगी. लेकिन मुझे कभी भी ये आइडिया नहीं था कि ब्लाइंड होना इतना ऑफुल या बुरा होता है. आप कोई चीज़ नहीं देख सकते. आपको हर समय यह डर लगा रहता है कि आपकी किसी चीज़ से टक्कर हो जाएगी. और जब आप बैठते हो तो आपको बहुत ही रिलीफ मिलता है. आपको बहुत ही आराम या रिलैक्स की फीलिंग होती है. तो नैरेटर उनसे दूसरा क्वेश्चन करते हैं कि क्या आपके हेल्पर्स आपके लिए काइंड होते हैं? क्या वो आपके प्रति दयालु होते हैं? तो वो लिटिल गर्ल जवाब देती है कि हाँ, वो बहुत दयालु होते हैं, लेकिन वो मेरी तरह उतने केयरफुल नहीं होते, उतने सावधान नहीं होते जितनी मैं होती हूँ जब मेरी टर्न आती है. और जो बच्चे पहले ब्लाइंड बन चुके हैं वो सबसे बेस्ट हेल्पर्स होते हैं, क्योंकि उन्हें पहले इसका एक्सपीरियंस हो चुका होता है कि ब्लाइंड होकर कैसा लगता है. और ये सच में बहुत ही डरावना है अगर आपको दिखाई नहीं देता. वो नैरेटर से बोलती है कि क्या आप भी इसे ट्राई करना चाहेंगे? नैरेटर उससे पूछते हैं कि क्या वो उन्हें कहीं छोड़ दे. देन, oh yes, she said, let's go for a little walk. Only you must tell me about things. I shall be so glad when today is over. The other bad days can't be half as bad as this. Having a leg tied up and hopping about on a crutch is almost fun, I guess.
Having an arm tied up is a bit more troublesome because you can't eat without help and things like that. I don't think I'll mind being deaf for a day, at least not much. But being blind is so frightening. My head aches all the time just from worrying that I'll get hurt. Where are we now? Now, the difficult word here is troublesome, and troublesome means difficult only. जब नैरेटर उस बच्ची से उसे कहीं छोड़ने को कहते हैं तो वो बच्ची उनसे कहती है कि हम एक छोटी सी वॉक पर चलते हैं और आप मुझे आसपास की चीज़ों के विषय में बताएंगे। मैं बहुत खुश हूँ, ग्लैड मीन्स हैप्पी, कि आज का दिन ओवर हो गया। दूसरे डेज इसके आधे भी बुरे नहीं होंगे जितना आज का दिन था। अगर आपका एक पैर बांध दिया जाए और आपको हॉप करके चलना हो या क्रच पे बैसाखी के सहारे चलना हो तो शायद बहुत मज़ा आता होगा ना, ऐसा मैं सोचती हूँ। और अगर आपका एक आर्म, आपका हाथ बांध दिया जाए तो शायद थोड़ा ट्रबलसम या डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि आप किसी की हेल्प के बिना खा नहीं पाएंगे और इस तरीके की दूसरी चीज़ें नहीं कर पाएंगे। और अगर मुझे बहरा बनना पड़े, डेफ बनना पड़े, बिना सुने रहना पड़े तो भी मैं पूरा दिन ऐसे रह सकती हूँ। लेकिन ब्लाइंड होना बहुत ही फियरफुल है, डरावना है। मेरा सर पूरे दिन दर्द कर रहा है सिर्फ इस ख्याल से कि कहीं मुझे चोट ना लग जाए। फिर बच्ची पूछती है कि उस वक्त वो कहाँ हैं। In the playground, I said. We are walking towards the house. Miss Beam is walking up and down the garden with a tall girl. What is the girl wearing? My little friend asked. A blue cotton skirt and a pink blouse. I think it's Millie, she said. What color is her hair? Very light, I said. Yes, that's Millie. She's the head girl. There's an old man tying up roses, I said. Yes, that's Peter. He is the gardener. He is hundreds of years old. वो बच्ची जब नैरेटर से पूछती है कि वो लोग उस वक्त कहाँ हैं तो इस पर नैरेटर जवाब देता है कि वो प्लेग्राउंड में हैं और घर की तरफ जा रहे हैं। मिस बीम गार्डन में ऊपर नीचे घूम रही हैं एक टॉल गर्ल के साथ। तो वो बच्ची पूछती है कि उस गर्ल ने क्या पहना है। इस पर नैरेटर जवाब देता है कि उसने ब्लू कॉटन स्कर्ट और पिंक ब्लाउज पहना है। यह सुनकर वो बच्ची जवाब देती है, मुझे लगता है वो मिली है। उसके बालों का रंग कैसा है? नैरेटर जवाब देते हैं, बहुत हल्का। इस पर वो बहुत कॉन्फिडेंटली बोलती है, हाँ वो मिली ही है और वो हमारी हेड गर्ल है। नैरेटर उसे बताते हैं कि वहाँ पास में एक ओल्ड मैन रोजेस को बांध रहा है। बच्ची जवाब देती है, हाँ वो पीटर है, वो हमारा गार्डनर है और उसे लगता है कि वो 100 साल से भी ज़्यादा उम्र का है। And here comes a girl with curly red hair. She is on crutches. That's Anita, she said. And so we walked on. Gradually, I discovered that I was 10 times more thoughtful than I ever thought I could be. I also realized that if I had to describe people and things to someone else, it made them more interesting to me.
When I finally had to leave, I told Miss Beam that I was very sorry to go. Ah, she replied, then there's something in my system after all. इसके बाद नैरेटर उसे बताते हैं कि एक लड़की आ रही है जिसके हेयर कर्ली रेड हैं और वो क्रचेस या बैसाखियों पर है। वो बच्ची झट से गैस करती है कि वो अनीता है और फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं। नैरेटर इस बात को डिस्कवर करते हैं कि अब वो बहुत ही चिंतनशील हो गए हैं। आज से पहले उन्होंने किसी भी चीज़ के बारे में इतना नहीं सोचा। उन्हें यह भी समझ आया कि लोगों को और चीज़ों को डिस्क्राइब करना किसी के लिए कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है। जब लास्ट में वो वहाँ से जाने लगे तो उन्होंने मिस बीम को अपनी भावनाएं बताते हुए कहा कि उन्हें जाते हुए अच्छा नहीं लग रहा है। इस पर मिस बीम ने खुश होकर जवाब दिया कि इसका मतलब मेरे सिस्टम में कुछ तो ऐसी बात है। And this was all about the chapter. Now here's a home assignment for you all. The question is there any school for differently abled children near your locality? Find it out and share with your classmates. क्या आपकी लोकेलिटी में डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए कोई ऐसा स्कूल है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए हो? अगर ऐसा है तो आप उसे ढूंढें और अपने क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर करें। तो इन दिस सेशन वी read the text with correct pronunciation. Then we discussed some difficult words with their meanings. We identified some pronouns also, and as it has been told that pronouns are words that replace a noun. Then there's a small home assignment. So I hope you must have understood the story thoroughly along with the difficult words as well as the pronouns that were discussed, and we'll be back again with the next part of this chapter in our next session. Till then, take care of yourselves. Bye-bye.